This podcast is brought to you by Free Buddhist Audio, the Dharma for your life. Our work is funded entirely by donations from our generous listeners. If you would like to help us keep this free, make a contribution at freebuddhistaudio.com/donate. Thank you and happy listening. Thank you very much, Vidyatara. So I'm very pleased to be here today to give this talk. It's rather wonderful to stand up here and look out at all of you. So we've already, as Mahamati said, had a series of talks. And Subhuti gave us a wonderful introduction to our theme. And actually, I'd like to take the opportunity to thank Subhuti for all the work that he's done in the last few years with Bhante. I think only with time will we realize how important the papers are that he and Bhante have produced in the last few years. And I know how much work he has put into those papers. Interviewing Bhante, having conversations, transcribing, going back to Bhante, writing everything up and producing a paper. बंते जी की मुलाकात लेना, फिर वो सब लिख के निकालना और लिखने के बाद फिर बंते जी के पास जाना, फिर उसको ठीक करना, फिर बंते जी के साथ विचार विमर्श करना और फिर अंत में वो निबंध लोगों के सामने पेश करना. So from the bottom of my heart, personally, and on behalf of our community, I'd like to take this opportunity to publicly thank Subhuti for that work. तो मेरे हृदय के अंदर से और हमारे पूरे संघ और आंदोलन की तरफ से ये मैं कहूँगी कि सुबुद्धि जी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद. And then we had those talks of breaking the bonds of self through intensive practice. तो मेरा ये प्रवचन है, उसका विषय है कि तो हमारी जो श्रृंखला है कि जो स्व का जो बंध है वो अपने आध्यात्मिक आचरण से तोड़ना. And yesterday, breaking the bonds of selfhood through a Dharma life. और कल हमने देखा था कि स्व का ये जो बंध है वो हम धम्म जीवन के माध्यम से किस तरह से तोड़ सकते हैं. And also Lokamitra's incredibly inspiring talk about social reconstruction. और वैसे ही लोकमित्र जी ने बहुत ही प्रेरणादायी ऐसा प्रवचन दिया कि सामाजिक परिवर्तन जो है, पुनर्रचना जो है किस तरह से की जा सकती है. So they're quite hard acts to follow. और इसलिए ये बहुत ही मजबूत ऐसे इसके पहले के जो प्रस्तुतियां हैं उसके आगे कुछ कहना बड़ा मुश्किल है. But I shall do my best to look at breaking the bonds of selfhood through serving the Dhamma. तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि धम्म की सेवा करके ये जो स्व का जो बंध है उसे हम कैसे तोड़ सकते हैं. And I want to look at this topic in 3 different ways or through 3 different focus. और ये बात जो है मैं 3 अलग-अलग ढंग से या 3 अलग-अलग केंद्र बिंदुओं को देखते हुए कहूंगी. I want to look at serving the Dhamma in terms of our personal practice. तो सर्व धम्म की सेवा करना सबसे पहले व्यक्तिगत आचरण के स्वरूप में मैं देखती हूँ. In relationship to our membership of our community. हमारे संघ के सदस्य होने के संबंध में धम्म सेवा क्या है. And in relationship to the world. और फिर दुनिया के संबंध में धम्म सेवा क्या है. So firstly in our personal practice. तो सबसे पहले हमारे व्यक्तिगत आचरण के संबंध में. Well, we serve the Dhamma by deeply understanding the Dhamma. तो हम धम्म को गहराई से समझ के धम्म की सेवा करते हैं. By deeply penetrating the law of conditionality. जो क्या कहते हैं उसको सांस्कारिक अस्तित्व का जो नियम है उसको गहराई से समझ के हम धम्म की सेवा करते हैं.
by deeply understanding and practicing in line with Paticca Samutpada. और प्रतीत्य समुत्पाद के माध्यम से गहराई से आचरण करने की समझने की कोशिश करके हम धम्म की सेवा करते हैं. But not only understanding that in an intellectual way, but bringing every aspect of our life in harmony with that truth. तो यह केवल बुद्धि से समझ लेने की ही बात नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का हर एक अंग जो है इसकी रेशा में हम लाने की कोशिश करते हैं. So we have many tools to help us to do this. और ऐसा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं. We have meditation practices, we have study of the Dhamma, and we have our friendships with each other. तो हमारी ध्यान साधना है, धम्म का अध्ययन है, एक दूसरे के साथ हमारी जो मित्रता है वो है. So we serve the Dhamma when we live with the knowledge of impermanence, insubstantiality, and dukkha. जब हम अनित्य, दुख और अनात्म इनके साथ जीते हैं, इनको समझते हुए जीते हैं, तब हम धम्म की सेवा करते हैं. And really we serve the Dhamma by breaking the first 3 fetters. और वास्तव में पहले 3 बंधनों को तोड़ने की कोशिश करके या तोड़ के हम सही में धम्म की सेवा करते हैं. We put ourselves in the service of the Dhamma as we make our going for refuge real. और अपने शरण गमन को सत्य शरण गमन बनाने की कोशिश में हम धम्म की सेवा करते हैं. So we break through our small, tight self view. तो हमारा जो एक छोटा सा बहुत ही पक्का जकड़ा हुआ जो स्व दृष्टिकोण है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं. Our dependence upon rites and rituals. हमारी जो भरोसा है जो क्या उसको जो विधियों में या शील व्रत परामर्श में. And our doubt and indecision. और हमारी जो शंकाएं हैं और अनिश्चितता है उसको तोड़ के. And there's nothing wrong with having a self view, having doubt and indecision, or being dependent upon rites and rituals. तो विचिकित्सा, शील व्रत परामर्श या जो तीसरा जो है कुशंका, इसमें रहना कोई बहुत बुरी बात नहीं है. What I mean is it's quite normal. We're human. तो मुझे ये कहना है कि ये काफी आम बात है, हम मनुष्य हैं. But we mustn't just settle into those. We must see them as human, but things to work with. तो हमने उसी में रहना अच्छा नहीं है, हमने उसको स्पष्ट रूप से मनुष्य करके देखना चाहिए और उनके ऊपर उठने की कोशिश करना चाहिए. So let me remind you of the terms that Bhante has used to make these 3 fetters more accessible to us in our practice. तो मैं भंते जी जो कहते हैं कि ये तीनों बंधनों को अपने आचरण में और दृश्य करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. He talked to us of habit, superficiality, and vagueness. तो भंते जी जो बात करते हैं आदत, ऊपरी होना और लास्ट Vagueness. और जो चीजों को अस्पष्ट रखना. Bhante is brilliant. भंते बहुत ही होशियार है. I know I'm not telling you anything you don't know. I'm not saying anything people don't know. अब मैं आपको ऐसी कोई बात नहीं बता रही हूँ जो आपको किसी को पता नहीं है. But I like to take the opportunity when I can. Bhante is brilliant. तो ये कहने की मैं मौका उठाना चाहती हूँ कि भंते ब्रिलियंट है. It was just wonderful that he gave us that talk, where things that can seem so distant, the 3 fetters, were made possible to work with in a very real way. तो मैं बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कि भंते ने वो प्रवचन दिया जिसमें जो बातें बहुत ही दूर की लगती थी वो हमें बहुत पास की लगने लगी और उस पर सही में हम कार्य कर सकते हैं. And not only did he rethink these or give us new terms for these 3 fetters, he gave us antidotes, ways to work with them. तो उन्होंने इन तीनों बंधनों को नई भाषा में नए स्वरूप में ही हमें नहीं दिया है, बल्कि उस पर कार्य करने के लिए जो उसका उतारा जो है वो भी उन्होंने दिया हुआ. So we work with our habits by creativity, the development of creativity. हमारे आदतों पर हम सृजनशीलता का विकास करके कार्य करते हैं. And we work with our superficiality through commitment, perhaps a deep, engaged, intense commitment. और हमारी ऊपर रहने की जो परिस्थिति है उसको हम गहरी प्रतिज्ञाबद्धता करके उस पर कार्य करते हैं. And we work with our vagueness through the development of clarity and wisdom. और हमारी जो अस्पष्टता जो है में रहने की जो हमारी बात है
उस पर धम्म की स्पष्टता से हम कार्य करते हैं। So in our personal practice, we can serve the Dharma by developing our creativity, deepening our commitment, and deepening our clarity. तो हम धम्म की सेवा जो है ये पहला अपने और ज़्यादा सृजनशीलता निर्माण करके, अपनी प्रतिज्ञाबद्धता को गहरा करके और अपनी स्पष्टता को बढ़ाते हुए हम कर सकते हैं। But of course, the breaking of the first 3 fetters is not enough. लेकिन निश्चित ही 3 बंधनों को तोड़ना ही पर्याप्त नहीं है। The next step is to weaken the 4th and 5th. अगली कड़ी जो है वह है चौथे और पांचवें को कमजोर करना। To weaken karma raga and vyapada. और कर्म राग और व्यापाद जो है उनको काम राग और व्यापाद जो है उनको तोड़ना, उनको कमजोर करना। To be willing to look in the face and experience our desire and our ill will. हमारी जो तृष्णा जो है और हमारी जो द्वेष है उसको सीधे सीधे देखना, ये इसमें समाविष्ट होता है। Because these are very deep tendencies of our being. क्योंकि हमारे अस्तित्व की ये बहुत ही गहरी प्रवृत्तियां हैं। While we have the bonds of self and we experience our separation between self and other, जब हमारे स्व के प्रति ये हम बंधे हुए हैं और मैं और दूसरा, आप और पर, इस रूप से हम दुनिया को देखते हैं, then of course we experience desire. We are propelled towards what we want. और इसी वजह से हम एक तरह से इस तृष्णा का अनुभव करते हैं। हमें जो चाहिए उसके तरफ हम खींचे चले जाते हैं। And we experience ill will, a repulsion away from what we do not like. और फिर द्वेष की वजह से हमें जो पसंद नहीं है उससे दूर जाने की जो है प्रक्रिया को हम अनुभव करते हैं। So serving the Dharma as an order member means breaking the first 3 fetters and weakening the 4th and 5th. तो एक संघ सदस्य करके धम्म की सेवा करना, इसका मतलब यह है कि ये 3 बंधनों को तोड़ना और चौथे और पांचवें को कमजोर करना। Weakening our craving and our ill will. और हमारी जो तृष्णा है और हमारा द्वेष है उसको कमजोर करना। So don't think that this is beyond us. अब ऐसा मत सोचिए कि ये हमारे बस की बात नहीं है। Have confidence in our mind precepts. हमारे जो मन के शील है उसमें हमें विश्वास, आप उसमें विश्वास रखिए। At ordination, we take those ordination vows, which include the 3 mind precepts. जब हम दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा की प्रतिज्ञा में ये 3 मन के शीलों का समावेश है। So let's have confidence that we can work on that level with the mind. और इसलिए यह विश्वास हमने रखना चाहिए कि इस स्तर पे हम मन पे कार्य कर सकते हैं। By the point of ordination, we will at least have weakened the first 3 fetters. जब हमारी दीक्षा के समय है, निश्चित ही ये 3 बंधनों को हमने कुछ कमजोर किया हुआ होता है। So let's keep going. और इसलिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। So this is working on the level of the kama niyama. और ये जो काम जो है, ये सब कार्य जो है, ये कर्म नियम के स्तर का कार्य है। It's working with our ethical practice. ये है खास करके शील के माध्यम से आचरण करना। Noticing each time craving arises and we act upon it. और ये देखना कि हर समय हमारे अंदर तृष्णा का उद्भव होता है और उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। Or each time ill will arises and we act upon it. और हर समय जब भी द्वेष हमारे अंदर निर्माण होता है और उसको हम कार्य में लाते हैं। So we must stay very vigilant to these 2 forces. और ये दोनों जो शक्तियां हैं उसको देखने के लिए हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। And when we do slip and we break those precepts, then again and again we make amends and move on. और जब भी हम इन शीलों का आचरण करने के लिए असफल होते हैं, हम नीचे चले आते हैं, बार बार फिर से वो नीचे नहीं आने की प्रतिज्ञाबद्धता हमसे करती रहनी चाहिए। So as serious Dharma practitioners, we find ourselves standing pulled between 2 forces. तो एक गंभीर आचरण करने वाले करके ये दोनों शक्तियां हमें खींच रही हैं दोनों तरफ, ऐसी परिस्थिति में हम अपने आप को पाते हैं। What Bhante has described as the gravitational pull backwards into samsara. भंते इसको संसार में खींचने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। But we also stand on the cusp of great liberation and freedom. लेकिन हम उसी के साथ एक बहुत ही बड़े ऐसे विमुक्ति के कगार पे खड़े हुए हैं।
So as we work with the karma niyama processes, तो जैसे ही हम इस कर्म नियम की प्रक्रियाओं के साथ कार्य करते हैं, we constantly work against those bonds of self. और तो ये स्व के जो बंध है उसी के ऊपर हम नियमित रूप से उनको तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं. And it's very good to be clear what is our responsibility in this. और इसलिए ये बहुत ही अच्छा है स्पष्ट होना कि इस क्षेत्र में हमारी जिम्मेदारी क्या है. Many things will happen to us, things that we don't like. बहुत सारी चीजें हमारे साथ घटती है, बहुत सारी चीजें हमें पसंद नहीं आती हैं. We can't always be responsible for what happens to us. हम हमेशा ही बाहर से हमारे साथ जो चीजें होती है उसके लिए जिम्मेदार हमेशा ही नहीं रह सकते. But yes, we are responsible for our responses and our own mental states. लेकिन उसको हम कैसा प्रतिसाद देते हैं, उसकी वजह से हम अपनी मानसिक अवस्था कैसी बनाते हैं, उसके लिए हम निश्चित ही जिम्मेदार होते हैं. So we serve the Dharma by constantly working on the level of the karma niyama processes. और इसलिए सातत्य से कर्म नियम की प्रक्रिया में अपने आप पर कार्य करते हुए हम धम्म की सेवा करते हैं. And also by opening ourselves to the Dhamma niyama processes. और उसके साथ ही धम्म नियम की प्रक्रिया के लिए खुद को खुला करके हम लोग सेवा करते हैं. So we serve the Dharma by becoming a clean, clear channel for the Dhamma niyama process to work through us. तो हमारे माध्यम से धम्म कार्य करना चाहिए. इसके लिए धर्म नियम के लिए एक तरह से स्वच्छ और प्रवाहित ऐसा चैनल जिसको बोल सकते हैं नलिका बनके हम कोशिश करते हैं. We serve the Dharma by opening ourselves to serve the bodhicitta. तो हम अपने आप को बोधिचित्त के प्रति खुला करके, उसकी सेवा के प्रति खुला करके धम्म की सेवा करते हैं. And of course, at our ordination, we take our ordination in a particular spirit. और हम जब दीक्षा लेते हैं तो एक विशिष्ट चैतन्य के साथ हम दीक्षा लेते हैं. As well as our ordination vows of Dhammachari, Dhammacharini precepts, धम्मचारी और धम्मचारिणी शीलों के साथ जो हम प्रतिज्ञाएं भी लेते हैं, we also end the public ordination ceremony with the 4 lines of acceptance. और जाहिर दीक्षा के वक्त हम 4 स्वीकृति की गाथाएं भी कहते हैं. And so we accept our ordination for the attainment of enlightenment. तो बुद्धत्व प्राप्ति के लिए हम हमारी ये दीक्षा ग्रहण करते हैं. So for the attainment of enlightenment, I believe, means creating those conditions to be a clean, clear channel for bodhicitta. तो बुद्धत्व संबोधि की प्राप्ति के लिए, बोधिचित्त के लिए प्राप्ति करने के लिए हम अपने आप को बोधिचित्त को प्रवाहित होने का जो एक माध्यम है वो बनाना चाहें. And thinking of our public ordination brings me to the second part of my talk. अभी जाहिर दीक्षा की बात करते हुए मैं अपने प्रवचन के दूसरे हिस्से में आती हूँ. So all of us sitting here, as far as I know, have had a private and public ordination ceremony. अब मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ कि यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं उनकी व्यक्तिगत और जाहिर दीक्षा हुई है. If there's anybody listening who hasn't yet, I hope it comes soon. और अभी ऐसे कोई बैठे हैं जिनकी जाहिर दीक्षा वगैरह अभी तक हुई नहीं है तो जल्दी हो जाएगी. So our ordination ceremony has 2 parts. तो हमारे दीक्षा के समारोह में जो है उसके 2 हिस्से होते हैं. Has the private part with our private preceptor, हमारा उसका जो व्यक्तिगत हिस्सा है वो हमारे आचार्य के साथ होता है. and the public part with our public preceptor. और जो जाहिर हिस्सा जो है वो हमारे उपाध्याय के साथ होता है. And it's actually at the public ordination that we enter the Triratna order. और जो जाहिर दीक्षा होती है उसी वक्त हम संघ में प्रवेश करते हैं. Until that moment, between the private and the public ordination, we are in a bardo. तो हमारे व्यक्तिगत दीक्षा और जाहिर दीक्षा के बीच में जो समय है उसमें हम बारडो में होते हैं. We have died spiritually, but not yet been reborn. आध्यात्मिक रूप से हमारी मृत्यु हुई है लेकिन पुनर्जन्म अभी तक नहीं हुआ है. But at the public part of the ceremony, we are reborn into our community. लेकिन जाहिर दीक्षा के वक्त जो है हम संघ में जन्म लेते हैं. And Bhante has often said he thinks we should make more even of the public ordination. भंते हमेशा कहते हैं कि जो हमारी जाहिर दीक्षा है उसका हमें और भी ज्यादा उसका महत्व देना चाहिए. He once said at a college meeting he was a little bit worried that people thought the private part of the ceremony was the real ordination. तो
एक वक्त हमें एक चिंता भी एक महसूस लोगों ने व्यक्त की थी कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो व्यक्तिगत दीक्षा है वही सही दीक्षा का समारंभ है। And the public part of the ceremony was the party afterwards. और वो कहते हैं कि जाहिर दीक्षा जो है बाद में की हुई पार्टी है, Especially when there's lots of cakes and tea and everybody has a very good time. तो जैसे कि खास करके चाय केक और सब लोग जो है बहुत वहाँ जोश और उल्लास मनाते हैं, Or sweeties. स्वीटी हमारे। But of course it's a time for great rejoicing and celebration. निश्चित ही जाहिर दीक्षा जो है ये ऐसा समय होता है कि जब हमें सही में पुण्यानुमोदन का और उसका उत्सव मनाने का वो समय होता है। But it also has a deep, sober and serious significance. लेकिन इसका गहरा एक विशेष ऐसा महत्व भी है, Because at that moment we become part of our community. क्योंकि उस वक्त हम हमारे संघ के हिस्सा बने हुए होते हैं। So we can serve the Dhamma by forming a true Sangha. तो हम एक सच्चा संघ का निर्माण करके धम्म की सेवा करते हैं। And this is relevant to another two lines of acceptance. और ये जो है दूसरी जो स्वीकृति की दो गाथाएं हैं उसके साथ इसका संबंध है। So we could say, with loyalty to my teachers, I serve the Dhamma. तो हम कह सकते हैं कि मेरे गुरुओं के प्रति प्रामाणिक रह के मैं धम्म की सेवा करता हूँ। And in harmony with friends and brethren, I serve the Dhamma. मेरे मित्रों और बंधुओं के साथ सुसंवादित रह के मैं धम्म की सेवा करता हूँ। So this is a very important aspect of who we are as a community. तो एक संघ करके हम जो भी है हम जो है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये हिस्सा है। And we're quite famous for coming together and creating community. हम बहुत ही प्रसिद्ध है इस बात के लिए इकट्ठा आना और संघ का निर्माण करना। Many years ago I heard someone say, बहुत साल पहले मैंने किसी को कुछ कहते हुए सुना था, Zen practitioners are very good at meditation. जैन जो प्रैक्टिशनर है वो ध्यान साधना में बहुत अच्छे हैं। And Tibetan practitioners are very good at ritual. तिबेटन जो साधक है वो पूजाओं में बहुत ही निष्णात है। And Triratna are very good at meetings. और त्रिरत्न जो है वो मीटिंग करने में बहुत ही निष्णात है। So when I first heard this, I felt quite insulted. तो जब मैंने ये सुना था तो मुझे थोड़ा जरा अपमानजनक लगा था। I thought, excuse me, we do meditation and ritual. तो मैंने कहा कि एक्सक्यूज भी, हम ध्यान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। But then afterwards I thought, actually, there is some truth. तो बाद में मुझे लगा कि नहीं, वास्तव में उसमें कुछ सच्चाई है। But I think we can really see this as a practice. तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि इसको हमने आचरण करके देखना चाहिए। So hopefully we don't just have meetings for their own sake. तो निश्चित ही हम मीटिंग जो है केवल मिलने के लिए नहीं करते। We don't just have meetings to arrange other meetings. हम केवल दूसरी मीटिंग तय करने के लिए पहली मीटिंग नहीं लेते हैं। I think everybody knows what I mean. अब सब लोग जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। But this is part of our practice of Sangha. तो ये संघ के आचरण का हिस्सा है। And Bhante once said, we can see the word Sangha as a noun and a verb. तो भंते जी जो कहते हैं कि संघ यह नाम भी है और क्रियापद भी है। So we are a Sangha, तो हम संघ हैं, but we also make Sangha. लेकिन हम संघ करते भी हैं। So the Sangha is not something which we come along and join. तो संघ ऐसी बात नहीं है कि हम आते हैं और उसमें शामिल होते हैं। We are the Sangha. हम स्वयं संघ है। So the Sangha is a gathering. तो संघ एक मिलन है। So we gather, तो हम मिलते हैं we Sangha. और हम संगते हैं। It's a new verb. I Sangha, you Sangha, he, she or it Sanghas. तो ये नया शब्द बोलते कि मैं संघ, तू संघ, वो और मैं, हम दोनों संघ। We Sangha, हम संघ, they Sangha. वह संघ। No, not they Sangha, we Sangha is best. केवल वो संघ नहीं, हम संघ। So we come together in many different levels within our community. हमारे संघ में हम कई अलग-अलग स्तर पर इकट्ठा आते हैं। From chapters to regions to bigger areas to internationally. तो कुल में, क्षेत्र में और बड़े क्षेत्र में और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में।
And one thing I think is always worth remembering when we think of our gatherings. तो जब हम हमेशा अपने इन मिलनों को हम जो बात करते हैं तब हम संघ की एक तरह से याद करते हैं That they're not based on like and dislike. क्योंकि ये जो मिलन है ये हमारे पसंद या नापसंद पर अवलंबित नहीं है. If we only have chapter with the people we like, some of us might have very small chapters. अगर हमारा कुल उन्हीं लोगों का होता है कि जिन लोगों को हम पसंद करते हैं तो हमारे चैप्टर बहुत ही छोटे-छोटे होते हैं. It's based on something bigger. हमारा संघ जो है वो उसका आधार कुछ बहुत बड़ा है. So when I was first ordained, there weren't that many options or choices. तो मैं जब पहली मेरी दीक्षा हुई थी तो मेरे पास बहुत सारा कोई ऐसा पर्याय नहीं था. I was living in West London and there were 5 order members. मैं पश्चिम लंदन में रहती थी और वहाँ 5 संघ सदस्य थे. So we had a chapter of 5 order members. तो हमारा 5 लोगों का कुल था. And then I moved to the centre in East London, the LBC. और उसके बाद में मैं पूर्व लंदन के LBC केंद्र में गई. And there were more order members. और वहाँ पर और ज़्यादा संघ सदस्य थे. But I think there were something like 7 women or 6 women. तो मुझे लगता है कि वहाँ 6 या 7 महिलाएं थी. So we just had a chapter. और फिर हमारा सबका कुल बन गया. And when someone else got ordained, she joined the chapter. और फिर और किसी की दीक्षा हुई वो हमारे स्कूल में दाखिल हो गई. And the next person joined the chapter as well. और फिर और किसी की दीक्षा हुई वो भी कुल में दाखिल हो गई. And we never said, shall we have this person in our chapter? तो फिर हमने ये नहीं सोचा क्या इसको हमारे चैप्टर में लेना है या नहीं लेना है. We never said, I don't like her very much. और हमने ऐसा भी नहीं कहा कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है. She was a member of the order. She joined the chapter. वो संघ की सदस्य है, वो कुल की सदस्य बन गई. And I sometimes worry that now there are places where people have so much choice that someone can fall down and not find a chapter. तो कभी-कभी मैंने देखी कुछ जगह पर इतने बहुत सारे पर्याय खुले होते हैं तो कोई बीच में ही लटक जाता है, गिर जाता है, उसको चैप्टर ही नहीं मिलता. So a chapter is a great opportunity for spiritual death. तो आध्यात्मिक मृत्यु के लिए चैप्टर कुल ये बहुत ही महत्व की मौका है. I've been in chapters with some people that frankly I would not have chosen them to be my good friend. तो मैं ऐसे लोगों के साथ संघ कुल में रही हूँ. अगर सही में आप मुझे कहोगे कि आप इनको अब मित्र बनाना चाहोगी क्या तो मेरा जवाब नहीं ऐसा होगा. And even more, they would not have chosen me. और इससे भी ज्यादा उन्होंने भी अपने मित्र करके मुझे नहीं चुना होता. But we've come together with great respect as Dhamma practitioners. लेकिन हम इकट्ठा आए धम्म आचरण करने वाले करके एक सम्मान के साथ. So in chapter, hopefully we come together in the service of something bigger than ourselves. कुल में जब हम इकट्ठा आते हैं तो हमारी यही आशा होती है कि हम हमसे कुछ ऊंचा है उसकी सेवा के लिए उस कुल में दाखिल होते हैं. And chapter is a wonderful place to break the bonds of self-clinging. तो कुल जो है ये बहुत ही महत्व की ऐसी परिस्थिति है जहाँ हम अपने स्व का जो बंध है उसको तोड़ सकते हैं. Really being part of a community like Triratna gives us so many wonderful opportunities to break the bonds of self-clinging. तो स्व की आसक्ति को तोड़ने के लिए त्रिरत्न में हमें इतने सारे मौके या इतने सारे अवसर मिलते हैं. We discover that the Sangha consists of people who do not think the same way as I do. हम ये पहचान लेते हैं कि संघ में ऐसे ही लोग नहीं है जो मेरे ही जैसे सोचते हैं. And that can be a shock. तो ये हमारे लिए एक सदमा पहुंचने वाली बात हो सकती है. Sorry, I'm losing my voice slightly, so if I get a bit high-pitched, that's why. तो मेरी आवाज जरा बैठ रही है, मैं थोड़ा जोर से बोलूं तो और जरा बैठ जाती है. So community is a wonderful opportunity to work with our ego. तो जो कुल है ये अपने अहम पर कार्य करने के लिए बहुत ही अच्छा एक अवसर होता है. But to work with our ego in a real and genuine way. तो हमारे अहम के साथ बहुत ही सच्चे रूप में कार्य करने के लिए So often when we are in relationship to people, there are 2 ways we might go. तो जब हम लोगों के साथ हमारा जो भी रिश्ता होता है हम एक तरह से 2 राह पकड़ सकते हैं. We might want to get our own way. We might want to impose our ego on the others. तो हम अपने ही मन की करने के लिए अपने अहम को उसके ऊपर भारी कर सकते हैं. Or we might step back and subordinate our ego to others.
या तो हम एक कदम पीछे ले सकते हैं और दूसरों के सामने अपने अहम को एक तरह से नीचे दबा दे सकते हैं। But in a true community, we do neither of those things. लेकिन सच्चा संघ जहाँ होता है तो दोनों में से कोई भी हम नहीं करते। Through our practice, we learn what we really think, believe, and value. तो अपने आचरण के माध्यम से हम जो वास्तव में किसको महत्व देना चाहिए वो सीखते हैं। And we're willing to stand up. We're willing to stand on what we believe and value. और हम तैयार रहते हैं कि हम जिस पर विश्वास करते हैं और जो हमें मूल्यवान लगता है उसकी बाजू में खड़ा होने के लिए। And at the same time, we are open to influence of the wise. और उसी के साथ जो हमारे से ऊंचे हैं, ज्ञानी हैं, उनके प्रभाव के लिए भी हम ग्रहणशील होकर खड़े रहते हैं। Which is really quite a wonderful combination. और निश्चित ये बहुत ही अद्वितीय ऐसा मतलब ये दोनों बातें हैं। So we can serve the Dharma by helping each other to work in this way. तो इस तरह से एक दूसरे को सहायता करके हम लोग संघ की सेवा करते हैं, धम्म की सेवा करते हैं। Consensus, I believe, is a truly high spiritual practice. मेरा विश्वास ये है कि जो एकमत जो है ये बहुत ही ऊंची आध्यात्मिक साधना है। We can also serve the Dharma within our community by being willing to come together in these large numbers. और इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा आकर उसकी तैयारी रखते हुए हम धम्म की सेवा करते हैं। And some people by temperament love to do this and some find it very challenging. कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि इतने बड़े सम्मेलन में आना उनके लिए बहुत ही खुशी की बात होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा आह्वान होता है। Really, even those of us who love it find it quite challenging. और कुछ लोग ये पसंद भी करते हैं, फिर भी इतने बड़े समूह में रहना उनके लिए थोड़ा सा कठिन भी होता है। And yet, we can feel that something bigger than ourselves can be here. लेकिन ऐसा होते हुए भी हम ये अनुभव कर सकते हैं कि हमसे पार गया हुआ कुछ जो है उसका अनुभव हम सबके बीच में कर सकते हैं। When I was here in 2009 and again this time, I have such a strong experience of how we are as a community. तो मैं 2009 में और अभी भी जब यहाँ आए हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा ये अनुभव मिला कि एक संघ करके हम कितने मजबूत हैं। And I'm so very aware of the genius of Bhante. और इसलिए फिर से भंते जी की जो अद्वितीयता है, विशेषता है, उसके प्रति मैं और जागृत हो जाती हूँ। How did he think of this? उन्होंने ये सोचा ही कैसे है? We're such an amazing community. You watch people watching us. तो हम कितने सुंदर ऐसा संघ है, हम देखते हैं कि लोग हमारे तरफ किस तरह से देखते हैं। This time I've been really noticing all the monks with their iPads. तो इस वक्त मैं वो सब भिक्षुओं की तरफ देख रही थी जो अपने iPad लेकर आते थे। And they're walking around taking photographs of Triratna. और वो हमारे इर्द-गिर्द घूम रहे हैं और त्रिरत्न के फोटोग्राफ ले रहे हैं। And I think they just do not know how to understand who we are. और भी वो ये बात को समझ नहीं पा रहे होंगे कि सही में ये कौन है लोग। So Bhante has created something truly remarkable. तो भंते जी ने बहुत ही विशेष ऐसी ये बात निर्माण करके दी है। And I just wanted to mention here that people all around the world in our community are having the opportunity to watch what's happening here. तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया भर के लोगों को ये मौका मिलना चाहिए ये देखने का कि यहाँ क्या हो रहा है। Thanks to the great hard work of Chandradasa and others who are helping, the Buddhist Centre online is showing daily updates of our convention. तो चंद्रदास और उनके साथी के मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि हर दिन इस कन्वेंशन में क्या हो रहा है वो buddhistcenter.com पे दिखाया जा रहा है। And I have received messages from friends of mine saying, I'm with you in spirit even though I can't be in India. और मुझे संदेश मिल रहे हैं हर दिन मेरे मित्रों से कि मैं आपके साथ हूँ, भले मैं वहाँ नहीं हूँ लेकिन मन से मैं आपके साथ हूँ। So we can serve the Dhamma by rejoicing in the wonderful, remarkable nature of our community. तो हम धम्म की सेवा करते हैं हमारे जो एक बहुत ही सुंदर और हमारे इतने अच्छे संघ को उसके साथ में रह के। And we can serve the Dhamma by honouring what Bhante set in motion. और भंते ने जो शुरुआत कर दी है जिसको गतिमान किया है उस बात को पहचानते हुए हम धम्म की सेवा कर सकते हैं। And by working together as a community to maintain what Bhante has given us.
और भंते जी ने जो कुछ भी हमें दिया हुआ है उसको हम पूरे संघ में एक साथ उसका जतन करने के लिए कोशिश करके हम धम्म की सेवा करते हैं। We do not know how much longer we will have Bhante with us. हम ये नहीं जानते कि कितने लंबे समय तक भंते जी हमारे साथ रहेंगे। Of course, we hope it's many, 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 many years. निश्चित ही हमारी आशा है कि भंते हमारे साथ कई साल रहे। But he's getting old. लेकिन वह अभी बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। He's physically frail. वे शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर हो रहे हैं। And unfortunately, he won't last forever. और दुर्दैव की बात यह है कि वो अंत तक नहीं रहेंगे। He too is subject to the law of impermanence. वे भी स्वयं जो अनित्यता का सिद्धांत है उनको लागू होता है। So we are in a crucial time for our community. तो हमारे संघ के लिए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आए हुए हैं। A time when the future of our community might be in question. और ऐसा भी समय आ सकता है कि जब हमारे संघ का अस्तित्व ही एक तरह से उसके सामने प्रश्न चिन्ह होगा। But I have confidence that we have everything we need to keep our community together after Bhante's death. लेकिन मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि भंते जी के हमारे से बीच से चले जाने के बाद संघ को जैसा है वैसा बनाए रखने के लिए हमारे पास जो चाहिए वो सब कुछ है। So I think it's so important that we work together in harmony to keep that force alive. और इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्व की बात है कि इस शक्ति को जिंदा रखने के लिए हम सब ने एक साथ सुसंवाद से कार्य करना चाहिए। I was so grateful for this most recent paper. I've been grateful for all of them, but this most recent one just made me cry. तो मैं सुबुद्धि जी के सभी जो निबंध है उस पर बहुत ही कृतज्ञ हूँ, लेकिन आखिरी जो पे है उसके लिए विशेष मैं कृतज्ञ हूँ। जब भी वो निबंध मैंने पढ़ा मेरे आंखों में आंसू आ गए। I just cried tears of joy when I read it, and I thought, yes, yes. तो जब भी मैंने वो पढ़ा तो मेरे आंखों से अश्रु आ गए और मैंने कहा कि हाँ यही चाहिए। And when Subhuti talks in that paper about the force that worked through Bhante to form our order, और जब सुबुद्धि जी बात करते हैं कि किस शक्ति ने भंते के माध्यम से संघ की स्थापना करने के लिए कार्य किया, I remembered very strongly an experience I had with Bhante in 1993. तो मुझे बहुत ही स्पष्ट रूप से याद आता है कि 1993 में भंते जी के साथ मेरा जो अनुभव है। I was very lucky and I had the opportunity to travel for almost 2 months with Bhante in America. और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली थी कि उस वक्त भंते संघर्षी जी के साथ मुझे अमेरिका में 2 महीने प्रवास करने का उनके साथ रहने का मौका मिला। And there were some public ordinations on that trip. और उनके उस यात्रा में जाहिर दीक्षाएं हो रही थी। So this took place in the other Arya Loka. और ये जो दीक्षाएं हैं वहाँ के आर्यलोक में हुई। And I was asked to give a talk. और मुझे प्रवचन देने के लिए कहा गया। So there were 3 talks. तो वहाँ 3 प्रवचन हुए। Dhammachari Manjivajra talked of the significance of these ordinations for America. तो मंजू वज्र ने प्रवचन दिया कि इस दीक्षा का अमेरिका के लिए क्या महत्व है। And I was asked to talk of the significance of the ordinations for the world. और मुझे ये कहने के लिए बताया गया था कि दुनिया के लिए इस दीक्षा का क्या महत्व है। And Subhuti, of course, was asked to talk about the significance on the cosmos. और फिर सुबुद्धि जी को फिर विषय दिया गया था कि इस दीक्षा का संपूर्ण विश्व के लिए क्या महत्व है। So I was a little bit jealous, but that was okay. तो मैं थोड़ी सी अंदर जलन हो रही थी मुझे, लेकिन ठीक है। I thought I've only got the world. मुझे सिर्फ दुनिया के बारे में बात करनी है। Anyway, when I gave this talk, Bhante was there. He actually introduced us. तो जब हमने प्रवचन दिए तो भंते जी वहाँ पर थे और भंते जी ने हमारा परिचय करके दिया था। Which is always a little bit nerve-wracking. और ये भी थोड़ा सा डरावना ही था, भंते हमारा परिचय कर रहे हैं। Anyway, I said in my talk तो मैंने अपने प्रवचन में बात की that our movement and order was an expression of Bhante's Bodhisattva ordination. तो मैंने कहा कि हमारा संघ और आंदोलन जो है ये भंते जी के बोधिसत्व दीक्षा की अभिव्यक्ति है। And it felt quite a big thing to say with Bhante sitting there. और भंते बैठे हुए पास में और उनके सामने ऐसा कहना मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी बात है। And I looked over and he was just sitting going. मैंने ऐसा कहने के बाद उनके तरफ देखा और वो बैठे थे और बिल्कुल आहिस्ता से अपनी गर्दन। And one of the things I love about Bhante is that he has a wonderful combination of humility and confidence.
तो भंते जी के बारे में मैं एक बात बहुत ही पसंद करती हूँ कि उनके अंदर बहुत ही विनम्रता भी है, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ा आत्मविश्वास भी है। So as we know, Bhante took a bodhisattva ordination from Dardo Rinpoche in 1956. तो जैसे मैं जानती हूँ कि भंते जी ने 1956 में दार्दो रिम्पोचे से बोधिसत्व दीक्षा ली थी। So it wasn't so very many years later that he formed our movement and then order. और उसको बहुत ज्यादा साल नहीं हुए थे जिसके बाद उन्होंने अपना संघ निर्माण किया। And I spoke to Bhante about that ordination some years ago. और कुछ साल के बाद मैंने भंते जी के साथ उनकी इस दीक्षा के बारे में बात की। And he said it was the happiest day of his life. और वे कहते हैं कि उनके जीवन का वह बहुत ही सुख का दिन था। It was very moving to have this conversation. तो भंते जी के साथ ये बात करते हुए मैं बहुत ही गदगद हो गई थी। And he said that he felt everything afterwards in his life came from that moment. और भंते कहते हैं कि उनके जीवन में बाकी सब चीजें जो है फिर उस क्षण के बाद में सहजता से आती गई। So I have no doubt at all our order is based on that experience of bodhicitta. और इसलिए मुझे कोई क्या बोलते हैं शंका नहीं है, संदेह नहीं है कि हमारा संघ उस बोधिचित्त के आधार पर बना हुआ है। So we serve the Dharma by really believing that and honouring that experience. और इसलिए इस बात पर सही में विश्वास रख के, इस अनुभव पर सही में विश्वास रख के हम धम्म की सेवा करते हैं। So our community has at its heart the Dhamma Niyama process. तो हमारा जो संघ है उसके हृदय में ये धम्म नियम की प्रक्रिया है। So I said that at ordination we have loosened the first 3 fetters. तो मैंने कहा कि हम दीक्षा के वक्त जो है इन 3 बंधनों को हमने थोड़ा ढीला किया हुआ होता है। We are working personally at being creative, committed and clear. और हम व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं ताकि हम सृजक हो, प्रतिज्ञाबद्ध हो और स्पष्ट हो। And our community also must be creative, committed and clear. और हमारा संघ भी ये सृजक होना चाहिए, प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। So in our own personal practice we work on the Kama Niyama level. तो हमारे व्यक्तिगत आचरण में हम कर्म नियम के स्तर पे कार्य करते हैं। But we must also work on that level as a community. लेकिन इसी स्तर पर संघ करके भी हमने कार्य करना चाहिए। We often talk about ethical practice as being very much personal responsibility. तो हम ज़्यादातर बात करते हैं कि जो आध्यात्मिक शीलाचरण जो है ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। And of course we practice individually and take responsibility. निश्चित ही हम शीलाचरण स्वयं व्यक्तिगत रूप से करते हैं, व्यक्तिगत रूप से उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। But I think we can also have a collective understanding of our precepts. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सामूहिक समझ भी होनी चाहिए शीलों के बारे में। But we do have a collective understanding of our precepts. That is how a preceptor can give the precepts, because they know that the person they're ordaining shares their understanding of Shila. और निश्चित रूप से हमारी ये सामूहिक समझ है शीलों के बारे में, क्योंकि हमारे आचार्य जो है, व्यक्तिगत उपाध्याय जो है, वे तभी हमें शील देते हैं जब वो जानते हैं कि आपकी समझ संघ के समझ के साथ जुड़ती है। That was a lot. I say a little bit and he says a lot. And this brings me to the last area of my talk. और इसके वजह से मैं अभी मेरे प्रवचन के आखिरी क्षेत्र में पहुंचती हूँ, which is serving the Dharma in the world. और ये है दुनिया में जाकर धम्म की सेवा करना। We don't want our community to be a clean, clear channel just so that it feels nice to be there. हमारा संघ बहुत ही स्पष्ट और स्वच्छ ऐसा धम्म का जो प्रवाह है वो बनना हम इसलिए नहीं चाहते हैं कि केवल संघ में हमें सबको अच्छा लगे। Although it probably will feel nice if we're a clean, clear channel. अगर हम ये बहुत ही स्पष्ट और सीधा अगर धम्म प्रवाह का स्रोत है, क्या बोलते चैनल है, तो हमें अच्छा लगेगा ही। But we do that so that through us as a community we can take that into the world. लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं अपने संघ में तो हम उसको दुनिया में लेकर जा सकते हैं। Our last line of acceptance is, for the benefit of all beings, I accept this ordination. हमारी स्वीकृति की जो अंतिम गाथा वो ये है कि सभी प्राणियों के हितार्थ मैं ये दीक्षा ग्रहण करता हूँ। The world needs the Dhamma. दुनिया को धम्म की जरूरत है। The world is burning.
दुनिया जल रही है। The forces of destruction are strong. जो उद्ध्वस्त करने वाली शक्तियां जो है वो बहुत मजबूत हैं। Lokamitra talked very movingly of this in his talk. लोकमित्र जी ने अपने प्रवचन में इस बात के लिए बहुत ही भावुक रूप से इन बातों को रखा है। So I won't remind us of those forces of destruction. अभी ये उद्ध्वस्त करने वाली शक्तियों की मैं आपको याद फिर से नहीं दिलाना चाहूंगी। But I was thinking of the bodhicitta practice. लेकिन मैं बोधिचित्त की साधना की बात सोच रही थी। When we reflect in the following way. जब हम इस तरह से सोचते हैं, we reflect all beings like myself हम ये seek happiness. हम ये सोचते हैं कि सभी प्राणी मेरे जैसा ही सुख की आशा रखते हैं। And yet all beings like myself create the conditions for suffering. और मेरे ही जैसे सभी प्राणी जो है अपने स्वयं के लिए दुख निर्माण करने की परिस्थितियां निर्माण करते हैं। Again and again we create the cycle of samsara. तो बार-बार हम जो है अपने लिए ये संसार निर्माण करते हैं। And the practice I do says, what a pity. और फिर जब हम साधना करते हैं हम कहते हैं कि कितने दयनीय स्थिति है। And every time I say that I feel like my heart might break. और जब भी मैं स्वयं ये कहती हूँ साधना में तब मैं ऐसा लगता है कि मेरा दिल फट जाएगा। What a pity. कितनी दयनीय स्थिति है। But pity must move us to action. लेकिन ये जो दया है ये हमें कृति की तरफ हमें ले जानी चाहिए। We have found the Dhamma. हमें धर्म मिला है। We have found the answer to the world's suffering. दुनिया के दुख का जो कारण है जवाब है हमें मिला है। We have found the answer to the cause of our suffering. दुनिया के दुख का जो कारण है उसका जवाब या उसके बाहर निकलने का मार्ग हमें मिला है। So we must share this with the world. और इसलिए हमने दुनिया के साथ इसको बांटना चाहिए। Learn to apply our dharmic principles to all areas of our life. तो हमने धम्म के इस तत्व को जीवन के हर क्षेत्र में लागू करना चाहिए। The economic, social, political. जो आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है। We live in the world. हम दुनिया में रहते हैं। So we must look at our own behavior in the world. तो इसलिए दुनिया में हमारा जो बर्ताव है उसके तरफ हमने देखना चाहिए। And also to be willing to speak out when we see prejudice, racism, casteism, all those things. तो जब हम इस तरह के भेदभाव देखते हैं जैसे जातिवाद है या वर्णभेद है, वंशभेद है, तब हमने अपना आवाज उठाना चाहिए। There are so many overwhelming problems. और बहुत सारे ऐसे बड़े समस्याएं हैं। We cannot fight these problems as individuals. एक व्यक्ति करके इन समस्याओं का सामना हम नहीं कर सकते। We can't even really fight these problems as a community. एक संघ करके भी इन सब समस्याओं को हम अकेले फेस नहीं कर सकते। We can only do that by becoming a channel for something bigger. तो हम तभी ये कर सकते हैं जब हम स्वयं किसी ऊंची बात के लिए एक तरह से उसको अपने माध्यम से प्रवाहित होने के लिए मार्ग बनते हैं। So we break the bonds of self by serving the Dhamma. तो हम स्व का जो बंध है, स्व आसक्ति का बंध है, धम्म की सेवा करके हम तोड़ते हैं। But we break the bonds of self so that we can better serve the Dhamma. हम स्व का बंध इसलिए तोड़ते हैं ताकि हम धम्म की और अच्छी सेवा कर सकें। So let's engage with intensity. और इसलिए बहुत ही तीव्रता के साथ में जुड़िए। And serve the Dhamma in our own individual practice. और धम्म की जो सेवा है अपने व्यक्तिगत आचरण के माध्यम से करिए। And let's engage with each other with intensity. और एक दूसरे के साथ भी उसी तीव्रता के साथ जुड़े रहिए। So we can serve the Dhamma within our community. ताकि हम अपने संघ के अंदर धम्म की सेवा कर सकें। And let's engage with each other so that our community can serve the Dhamma in the world. और हम एक दूसरे के साथ और तीव्रता से हमने काम करना चाहिए ताकि इस संघ के माध्यम से हम दुनिया को उसकी सेवा कर सकें। We talk of Avalokiteshvara as the symbol of our order. हम अवलोकितेश्वर एक संघ का प्रतीक करके बात करते हैं। And sometimes on ordination retreats that I am involved in, और कभी-कभी जो दीक्षा शिविर जो है जिसमें मैं शामिल रहती हूँ, we talk of the figure of the thousand-armed Avalokiteshvara. हम हजार हाथ वाले अवलोकितेश्वर की प्रतिमा की बात करते हैं। And we say that the hands at his heart represent our personal practice.
तो हम ये कहते हैं कि उनके जो दो हाथ है जो हृदय के साथ में होते हैं वे हमारे व्यक्तिगत आचरण का प्रतीक है. We say that his body represents the community, the order. उनका जो शरीर है वो संघ जो है उसका प्रतीक है. And we say that the arms stretching out are our community moving out and stretching into the world. और हम ये कहते हैं कि उनके जो फैले हुए हाथ है वो ऐसे है कि हमारा संघ दुनिया के तरफ पहुंच रहा है. So let's do everything in our power to make that real. और इसलिए हमसे जो कुछ होता है इस बात को सच्चाई में लाने की उतारने के लिए हमने करना चाहिए. Where the bodhicitta has not yet arisen, may it arise. जहाँ बोधिचित्त निर्माण नहीं हुआ है वहाँ वो निर्माण हो. Where it has arisen, may it flourish. और जहाँ ये निर्माण हुआ है वह वहाँ पर उसका विस्तार हो. And where it flourishes, may it never die. और जहाँ इसका विस्तार हुआ है वहाँ से ये कभी नष्ट न हो. Thank you for your translation, Kumraji. धन्यवाद आपके प्रवचन. We hope you enjoyed this week's podcast. Please help us keep this free. Make a contribution at freebuddhistaudio.com/donate. And thank you.